Namaskar, myself Saurabh Srivastava, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to my channel Anusandhan, and this is my new series of video which is related to business law. Already we have discussed about in previous videos, Indian Contract Act 1872, but today in this video I am going to unfold a new act. This is called Indian Partnership Act 1932. In this video I am going to discuss about the basic concept of the Indian Partnership Act 1932 along with essential elements of partnership. Let us start. First of all, we need to know what is partnership exactly, and what about the basics of Indian Partnership Act 1932. Indian Partnership Act 1932, earlier it was a part of Indian Contract Act 1872. पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था, उसके बाद सेपरेट होके ये एक्ट बनाया गया जिसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रखा गया. It has come in force first day of October 1932. Expect section 69. सेक्शन 69 को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस इन फोर्स आ चुके थे फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 1932 को, और सेक्शन 69 भी आफ्टर 1 ईयर इन फोर्स में आ गया था. इट इज द सेंट्रल एक्ट पास इन पार्लियामेंट एंड इट एक्सटेंड्स होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. So this is some basic information about Indian Partnership Act 1932. 1 अक्टूबर 1932 को ये इनेक्टेड हुआ था, और इसके पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट था. उसमें से कुछ सेक्शन निकाल के एक सेपरेट एक्ट बनाया गया जिसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रखा गया, जो कि 1 अक्टूबर 1932 को इनेक्टेड हुआ. What is partnership? Partnership, this is very common word, everybody talking about that. Partnership is very common phenomena. Partnership means what? The relationship between two or more than two person. The relationship between two or more than two person is called partnership. But as per Indian Partnership Act 1932 and in section 4 the definition is here. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share profit of business. Who have agreed to share profit of business. ध्यान दीजिएगा. The first thing is agreed to share profit of business, not loss of business. Profit of business. Profit of business is also sharing the profit is also essential elements of Indian Partnership Act 1932. It means essential elements of partnership. So to share profits of business, not loss. But it is implied that suppose you are a partner in any firm and you are sharing the profit, it is implied that you are also sharing the loss in same ratio. Yes, it is implied, but as per Indian Partnership Act 1932, the essential element for the partnership is only share the profit, because there are some partner who share profit only, and even prima facie you can say that in a Indian partnership, as per Indian Partnership Act 1932, for formation of the partnership, sharing the profit in a business is compulsory, but it is not conclusive statement. ध्यान दीजिएगा, ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है.
क्यों? मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि सपोज देयर इज वन मैनेजर इन अ कंपनी हु इज शेयरिंग द प्रॉफिट, सॉरी नॉट अ कंपनी, इन अ फर्म, एंड हु इज शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बट ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज एम्प्लॉय. As per remuneration or as per salary, he is sharing the profit of the firm, but still he is employed. वो पार्टनर नहीं है. तो इसका मतलब ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट नहीं है, बट प्राइमा फेसिया इट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो रही है, तो शेयरिंग द प्रॉफिट इज द एसेंशियल एलिमेंट. दोनों बातें कवर हो गई. एक एसेंशियल एलिमेंट भी आपको बता दिया और डेफिनेशन में भी हम लोग आगे बढ़ गए. नाउ share the profit of business carried on by all, मतलब सबके द्वारा चलाया जाए, or any of them acting for all. What does means? Any of all acting for them, या तो सब लोग काम करें या कोई एक सबके लिए काम करे. क्या है इसका मतलब? This is the concept of mutual agency. This is the concept of mutual agency. इसको भी बता देते हैं अभी. दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. चलिए, तो म्यूचुअल एजेंसी एक बार समझते हैं. म्यूचुअल एजेंसी के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियोस में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पर भी एक वीडियो बनाया है, उसको भी देखिएगा. लेकिन अभी के लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियरेंस देता हूं. व्हाट इज द मीन्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज एजेंसी. Suppose there are three partners, A, B and C. A, B and C. तीन पार्टनर हैं किसी एक पार्टनरशिप फर्म में. तो मे बी द A is dealing with marketing, B is dealing with account, and C is dealing with supply chain. Suppose तीन व्यक्ति हैं, तीनों फर्म में अलग अलग काम देखते हैं. जब मार्केटिंग का काम होता है तो A is working on the behalf of B and C. A is working on the behalf of B and it means A is working as an agent and B and C is working as a principal. Working as a principal. अगर बात नहीं समझ में आई हो तो फिर से देखिए. In the case of contract of agency, there are two parties. One party is called principal and second party is called agency. The one party is working on the behalf of second party. On the behalf of second party. So agent is working on the behalf of principal and agent have a right to make a contract on the behalf of principal. Agent have a right to make a contract on the behalf of principal. समझ पा रही बात? कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि एक टीवीएस की एजेंसी है, टीवीएस टू व्हीलर, टीवीएस की एजेंसी है राज के नाम से, राज टीवीएस, और कंपनी क्या है? टीवीएस. तो यहां पे टीवीएस है कंपनी, इज द प्रिंसिपल एंड राज टीवीएस इज द एजेंट. राज टीवीएस हैव अ राइट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीवीएस. ये टीवीएस के बिहाफ पे इनके पास ये अधिकार है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं. इन अ सेम वे, इन अ पार्टनरशिप फर्म, A is working on the behalf of B and C. A have a right to make a contract on the behalf of B and C. लेकिन किसी फिर दूसरे काम के लिए, अकाउंट के लिए क्या है? B is working on the behalf of A and C. Here B is working as an agent. B is working as an agent on the behalf of A and C. In this case, partner A and partner C is working as a principal and B is working on the behalf of A and C and working as an agent. Suppose for the supply chain, C is working
C is working on the behalf of A and B. Here, अभी तो क्लियर हो गया Here, A and B is working as a principal and C has right to make a contract on the behalf of A and B. तो दो बातें यहां से क्लियर हुई. एक तो यहां पे है carried on by all, are any of them acting for all? तो this is the case of mutual agency. Mutual agency क्यों कहते हैं? हम सब लोग एक दूसरे के लिए एजेंट हैं. अगर हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म में हैं तो ईच एंड एवरी वन इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट. डिपेंड करता है किस किस केस में, आपको बताइए. समझ में आई बात? दिस इज द केस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. हम आपके बिहाफ पे काम करेंगे, आप हमारे बिहाफ पे काम करेंगे. आप कोई काम करेंगे तो हम भी जिम्मेदार होंगे उसके, हम कोई काम करेंगे तो आप भी जिम्मेदार होंगे उसके. तो दिस इज द मीन्स ऑफ म्यूचुअल एजेंसी. आई होप अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली व्हाट इज पार्टनरशिप. फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं और कंप्लीट क्लियरेंस लीजिए. पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर देन टू पर्सन. बिकॉज फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट एटलीस्ट टू पार्टी इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एग्रीमेंट. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कम से कम दो पार्टी तो होनी चाहिए. तो दो या दो से अधिक लोग होंगे who have agreed to share profit of business. It is also compulsory element. Profit of business carried on by all are any of them acting for all. So this is a legal definition of partnership. Now I'm going to discuss about essential element of partnership. The first one is two or more person. Already have discussed in previous video about this concept कि two or more person are required. कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए for making the partnership. वो लोग कैसे होने चाहिए? Maybe the person is natural person, मतलब हम आप सभी लोग. और maybe artificial person. Who is the artificial person? The organization is called artificial person. The company is called organization. Company is called artificial person. So maybe the person may be artificial, person may be natural. And most important thing, the person must have competency to make a contract. Competency, ये दो लोग जो होंगे, दो या दो से ज्यादा लोग, वो कैसे होंगे? या तो नेचुरल होंगे या तो आर्टिफिशियल होंगे. एक बात और कि उनके पास क्या योग्यता होनी चाहिए. जहां योग्यता की बात आ गई, एलिजिबिलिटी की बात आ गई, वही कैपेसिटी ऑफ पार्टीज की बात आ गई. कैपेसिटी ऑफ पार्टी मींस कंपिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. कंपिटेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट. 3 चेक लगे हुए हैं, टिक करना है कि भाई तीनों फुलफिल है या नहीं. फर्स्ट वन, द पार्टी मस्ट बी मेजॉरिटी इन एज. उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. कुछ और कंडीशन में 21 साल है, लेकिन 18 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए. वह वयस्क होना चाहिए, पहली बात. लेकिन हमने पहले बताया था माइनर कैन बी ए पार्टनर. यस, माइनर कैन बी ए पार्टनर, बट नॉट डायरेक्टली. इट मे बी इंटरिंग टू द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर ओनली, फॉर द बेनिफिशियल हो सकता है. नहीं तो कंपिटेंसी क्या है कि कम से कम मेजॉरिटी इन एज होना चाहिए. सेकेंड वन, मस्ट बी साउंड माइंडेड. अनसाउंड माइंडेड नहीं होना चाहिए. ईडियोसी का केस नहीं होना चाहिए, है कि नहीं. कोई ब्रेन डिजीज नहीं होना चाहिए भाई. ओल्ड एज की वजह से कोई मेंटल डीके नहीं होना चाहिए. द पर्सन मस्ट बी साउंड माइंडेड, द सेकेंड कंडीशन. द थर्ड वन इज नॉट क्वालिफाइड बाई, नॉट डिसक्वालिफाइड बाई एनी लॉ. किसी और लॉ से डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए. तो दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द पार्टनरशिप. टू आर मोर पर्सन. पर्सन may be natural, may be artificial, and person must be competent to make a contract. समझ में आ रही बात? Must be majority in age, sound minded, and not disqualified by the any law. Now the next one is agreement. एग्रीमेंट के बारे में तो आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस बने हैं. तो एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस आर सेट ऑफ प्रोमिसेस make consideration to each other is called agreement. Or in a short way we can understand offer plus acceptance is equal to promise
प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। डायरेक्ट भी कह सकते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट जो है, दिस एग्रीमेंट इज मस्ट बी arises फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम द स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी arises फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए, मे बी एक्सप्रेस में भी इम्प्लाइड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनना चाहिए। ये बाय द स्टेटस नहीं होगा, बाय द कॉन्ट्रैक्ट होगा। दिस एग्रीमेंट मस्ट बी arises बाय द कॉन्ट्रैक्ट नॉट बाय द स्टेटस। ये मतलब क्या है कि भाई नॉट बाय द स्टेटस? नॉट बाय द स्टेटस का मतलब जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस है, तो एक व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरा बेटा आया फिर बिजनेस करने के लिए, तो वो क्या है, वो इम्प्लाइड है कि वो मेरा पार्टनर हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है कि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है, दोनों के रूल्स रेगुलेशन अलग अलग है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द मीन्स ऑफ एग्रीमेंट। शेयरिंग द प्रॉफिट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। बिजनेस, देखिए बिजनेस इज इंपॉर्टेंट, बिजनेस होना चाहिए तभी तो बनेगा। बिजनेस मस्ट बी एग्जिस्टिंग बिजनेस, या आपका बस बिजनेस शुरू होने वाला हो, कुछ ऐसे कंडीशन में आपका बिजनेस होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे पार्टनरशिप फॉर्म का। एंड मस्ट बी एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। ये तो बताने की बात भी नहीं है, ये तो पता ही है कि बिजनेस मस्ट बी लॉफुल। एंड क्या होना चाहिए बिजनेस का ऑब्जेक्टिव? अर्निंग द प्रॉफिट, क्योंकि जब प्रॉफिट अर्न करने का उद्देश्य नहीं है तब तो वो एनजीओ या ट्रस्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म का उद्देश्य हमेशा होगा कि लाभ को कमाना, अर्निंग द प्रॉफिट। जब अर्निंग द प्रॉफिट होगा तभी तो शेयरिंग द प्रॉफिट होगा। समझ में आ रही बात? तो इट मीन्स इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन अ बिजनेस, business must be profit oriented, existing or running business, and business must be lawful. And I have already completed the concept of mutual agency. Mutual agency मैंने बताया था कि ये लाइन ही पढ़ लीजिए म्यूचुअल एजेंसी में, on by carried on by all are any of them acting for all. Here A is working on the behalf of B and C. Here A is agent, B and C is the principal. B is working, अब भाई एक दूसरे के लिए लोग एजेंट है, एक दूसरे के लिए लोग प्रिंसिपल है, इसी को हम बोलेंगे म्यूचुअल एजेंसी। तो दीज आर essential elements of partnership. So that's all about the basic concept of partnership as well as essentials of partnership. Thank you so much. धन्यवाद।